Hello my dear students, once again I am here and this time we are going to solve exercise 9.5 as we have already completed exercise 9.4 in our previous lecture. Now we are going to start exercise 9.5. This is a very important exercise and before we start this exercise we will have to understand a few more concepts. Basically this exercise is based on the 3 or 4 identities. And what are those identities? The identities are a plus b whole square, that is a square plus b square plus 2ab. Another one will be a minus b whole square, that is a square plus b square minus 2ab. The third one is a plus b, a minus b is equals to a square minus b square, and the last one is x plus a, x plus b is equals to x square plus a plus bx plus ab. So you can say these are the 4 formula which we are going to use in this exercise and which have been created by the product of binomials only. Like a plus b whole square has not come from anywhere but by multiplying a plus b with a plus b only. Because when we will do like so, what will happen? A will be multiplied by a plus b and b will be multiplied by a plus b. ये कुछ भी नहीं है, a plus b का होल स्क्वायर क्या है? a plus b का a plus b में मल्टीप्लाई है और ये मल्टीप्लाई आपको ऑलरेडी करना आता है. तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. So this is nothing but the final result. We are not doing this all, but we are learning it straightforward. Because sometime when we will have to use it too many times, 2-3 बार एक ही बार में यूज करना है, एक ही क्वेश्चन में यूज करना है, तो मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा. और अगर हम सीधा रिजल्ट याद कर लेंगे तो वी कैन यूज इट डायरेक्ट. ओके, सो लर्न दीज रिजल्ट्स 1, 2, 3 and 4, and thereafter on the basis of that we will solve exercise 9.5. exercise is quite lengthy, लंबी exercise है, तो it will take some time. Today we will target to finish question number 1, 2 and 3. Thereafter we will try to finish rest of the few questions in our live class. Okay, so let us start exercise 9.5. You keep remembering these formula. Unless these formula are not properly learned, it will take time. Question number 1, part 1. What is this? X plus 3 multiplied by x plus 3. So x plus 3 and x plus 3 is nothing but x plus 3 का whole square. So what formula we are going to apply it? A plus b का whole square. What formula? A plus b. So a plus b का whole square is a square plus 2ab plus b square. तो in this question a की जगह क्या है? x और b की जगह क्या है? 3. a की जगह तो हमें रखना है x और b की जगह रखना है 3. बस इस फॉर्मूले में a की जगह x रख दीजिए और b की जगह 3. तो हो गया x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर. तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहा, 2 3 जा 6x और 3 का स्क्वायर 9. बस दिस इज द आंसर. समझ आई बात? What we have done? X plus 3, x plus 3, x plus 3, x plus 3 is nothing but x plus 3 का whole square. So from here we come to know that the first formula will be applied. The first formula is a plus b का whole square, that is a square plus 2ab plus b square. अब कंपैरिजन करने पर मुझे पता चला a की जगह x है और b की जगह 3 है, तो फॉर्मूले में a की जगह x रख दिया और b की जगह 3. I got my answer. Okay, the same way is the second one. Second part क्या कह रहा है? 2y plus 5
and 2y plus 5. So I got 2y plus 5 का होल स्क्वायर. अभी भी मेरा फर्स्ट फॉर्मूला ही यूज हो रहा है. सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a की जगह क्या है 2y, b की जगह क्या है 5. तो 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर. तो 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर. 2 2 जा 4 5 जा 20y और 5 का स्क्वायर 25. सो दिस वे वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चन. इस तरह से ये क्वेश्चंस होंगे हमारे सॉल्व. समझ आई बात? ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड 2. अब थर्ड वाले में क्या है नेगेटिव. थर्ड वाले में है हमारे नेगेटिव. कोई बात नहीं, नेगेटिव है तो नेगेटिव का फॉर्मूला. मैं थर्ड की जगह फोर्थ बता रहा हूं क्योंकि उसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व है. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4. इट इज 3a minus 1 by 2. 3a minus 1 by 2. 3a minus 1 by 2. सो ये हो गया हमारा 3a minus 1 by 2 का होल स्क्वायर. ओके, विच फॉर्मूला विल बी अप्लाइड? सेकेंड फॉर्मूला इज a minus b का होल स्क्वायर. इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है जी. a की जगह 3a, b की जगह 1 by 2. चलिए जी रखते हैं. तो 3a का होल स्क्वायर प्लस 1 by 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 1 by 2. तो इसको सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. 3a का स्क्वायर कितना 9a स्क्वायर. 1 by 2 का स्क्वायर कितना 1 by 4. और आंसर इज माइनस 3a. दिस वे this will be the answer for question number 4, part 4 of question number 1. Now which part? Fifth, because fifth is using the third formula. Question number 5 is using, part 5 is using third formula. 1.1 m minus 0.4. 1.1 m plus 0.4. So you can see that formula is third. In the bracket now the terms are same, sign is different. क्या था फॉर्मूला? a plus b, a minus b बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a की जगह क्या है 1.1 है और b की जगह क्या है 0.4. तो 1.1 m का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर. आंसर इज 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16. आई एम वेरी श्योर यू कैन डू दिस. कर पाएंगे आप. सिक्स्थ वाला पार्ट भी यही है. देखो सिक्स्थ वाले पार्ट में उसने क्या कर रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो अब हमें पता चल गया कि ये वेरिएबल तो टर्म्स तो सेम है, तो साइन माइनस है. फॉर्मूला लगेगा हमारा यही a प्लस बी a माइनस बी. आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a की जगह क्या है b स्क्वायर और b की जगह क्या है a स्क्वायर. तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर और a स्क्वायर का होल स्क्वायर मुझे मिला b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4. ये है हमारा पार्ट नंबर 6. 7th भी इसी पर बेस्ड है. 8th वाला सेकंड फॉर्मूला लगेगा, 9th वाले में फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा और 10th वाले में सेकंड फॉर्मूला लगेगा. 9th पार्ट में आपको पार्ट नंबर 9 आपको करके दिखा रहा हूं. इसमें दोनों जगह फ्रैक्शन है इस वजह से. बाकी अगर हमें फॉर्मूला याद है तो सिंपली फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9 क्या है? x by 2 plus 3y by 4. x by 2 plus 3y by 4. x by 2 plus 3y by 4. तो ये क्या बन गया? x by 2
प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, इससे आपका फायदा क्या होगा कि फॉर्मूला विल बी लर्न टू यू, फॉर्मूला याद हो जाएगा। 3/4, a की वैल्यू हो गई x/2, b की वैल्यू हो गई 3/4y, फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, x की a की जगह x/2, b की जगह 3/4y प्लस b स्क्वायर है तो 3/4y का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हुआ, x स्क्वायर बाय 4, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बन गया 3/4xy, और ये क्या बन गया 9/16y स्क्वायर। बस ये आंसर हमारा। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ फॉर्मूला पर बेस्ड है। अब पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बेस्ड है फोर्थ फॉर्मूला पर। क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 x प्लस 7, चलो जी x प्लस 3 x प्लस 7, और फॉर्मूला क्या है x प्लस a x प्लस b। अब जो कि हमारा फॉर्मूला प्लस में है, तो अगर प्लस में है तो हमें कुछ सोचना नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूला प्लस में नहीं है, कहीं माइनस है, तो हमें a और b की वैल्यू साइन सहित लेनी है। वी विल हैव टू टेक दीज वैल्यूज विद साइन, ओके। अभी तो प्लस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं, x की वैल्यू तो x, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 7। चलिए जी सीधा सा इसमें रख दीजिए, तो मिला x स्क्वायर प्लस a की जगह 3, b की जगह 7 प्लस x, 3 इंटू 7, आंसर आ गया x स्क्वायर 3 प्लस 7 10x और 3 7 जा 21। सो दिस वे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इज द आंसर। फिर से समझ लीजिए एक बार, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, x प्लस 3 x प्लस 7, x प्लस a x प्लस b वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। कंपेरिजन करने पर x की वैल्यू तो x, a की जगह 3 और b की जगह 7। अब x a b की वैल्यू फॉर्मूले में रख दीजिए, x स्क्वायर प्लस a की जगह 3, b की जगह 7, x 3 इंटू 7, सॉल्व कीजिए, आंसर पाइए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। क्या कह रहा है, 4x प्लस 5 एंड 4x प्लस 1। फॉर्मूला क्या है, x प्लस a x प्लस b x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। x की जगह 4x, a की जगह 5, b की जगह 5, ठीक है। तो अब हमें x की जगह क्या रखना है 4x, a की जगह 5 और b की जगह 1 कहाँ रखना है, इस फॉर्मूले में। चलिए जी रखते हैं, तो मुझे मिला 4x का स्क्वायर प्लस a की जगह 5, b की जगह 1 और x की जगह 4x, 5 इंटू 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 5 और 1 6 और 6 4 जा 24x प्लस 5 1 जा 5। तो इस तरह से ये आएगा हमारा आंसर। तो ये तो बात हुई पॉजिटिव की। अब अगर नेगेटिव है, थर्ड पार्ट देखेंगे तो a और b की वैल्यू नेगेटिव है, कोई बात नहीं, होने दीजिए, हम a और b की वैल्यू साइन सहित रखेंगे, इतना ही डिफरेंस है बस। 4x माइनस 5 एंड 4x माइनस 1। फॉर्मूला तो प्लस में है, x प्लस a x प्लस b, तो मुझे मिला x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो x की वैल्यू तो 4x, लेकिन a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू भी -1। ये सिर्फ हमें इसी में करना है,
क्योंकि हर बार तो हमारे पास फॉर्मूला भी माइनस का था, तो साइन वेरिएबल की वैल्यू हम माइनस नहीं लेते थे। इसमें हमें फॉर्मूला प्लस में है और आंसर क्वेश्चन माइनस में है, तो ए और बी की वैल्यू माइनस में लेनी पड़ेगी। तो ये हुआ 4x का स्क्वायर प्लस ए की जगह -5, बी की जगह -1 और 4x प्लस ए की जगह -5 और बी की जगह -1 का मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया 16x स्क्वायर। सो -5 और -1 हुआ -6 और -6 की -4 में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 24x और -5 का -1 में मल्टीप्लाई +5। तो आंसर आएगा ये। समझ आई बात? आई एम वेरी श्योर कि ये माइनस वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है कि कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा तो साइन सहित लेना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ फोर्थ भी बताता हूँ, क्योंकि फोर्थ में एक जगह प्लस है एक जगह माइनस, कोई बात नहीं, जो प्लस है उसे प्लस लेंगे, जो माइनस है उसे माइनस लेंगे। ठीक है जी, ये हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट। क्या है क्वेश्चन? 4x + 5 4x - 1, 4x + 5 4x - 1। फॉर्मूला क्या है? x + a x + b x स्क्वायर प्लस a + bx प्लस ab। तो x की जगह तो 4x, a की जगह 5 और b की जगह -1। ठीक है, तो सिर्फ b माइनस है इस बार। तो 4x का स्क्वायर प्लस a की जगह 5 b की जगह -1 4x प्लस a की जगह 5 और b की जगह -1। ठीक है, क्या मिला? 16x स्क्वायर। 5 में से बन गया 4 4 4 जा 16 प्लस का 16x और माइनस का 5 5 बन जा 5 माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर एक माइनस है तो एक माइनस लेंगे, दोनों माइनस थे तो हमने दोनों माइनस लिए थे। ठीक है ना? आई एम वेरी श्योर आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर कि सर ये चीज हमें समझ नहीं आई, आई विल टेल यू सेपरेटली। ओके, एज फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग ऑल्सो, कुछ पूछ भी रहे हैं मुझसे, बाकी कुछ तो पूछते नहीं, कुछ भी बता दो, कुछ भी मत बताओ। अब मैं आपके लिए कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर पार्ट 6, 2a स्क्वायर + 9 2a स्क्वायर + 9 एंड 2a स्क्वायर + 5। ठीक है, अब एक कैसे पता चल रहा है कि ये फोर्थ है, फोर्थ फॉर्मूला है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है। देखो, अगर दोनों ब्रैकेट में होता 2a स्क्वायर + 9 2a स्क्वायर + 9 होता फर्स्ट फॉर्मूला, 2a स्क्वायर - 9 2a स्क्वायर - 9 सेकंड फॉर्मूला, 2a स्क्वायर + 9 2a स्क्वायर - 9 थर्ड फॉर्मूला। अब 2a स्क्वायर + 9 और 2a स्क्वायर + 5 दोनों में वेरिएबल अलग अलग आ गए हैं, तो ये फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला क्या है? देखो, x + a और x + b। x तो सेम है, a और b डिफरेंट, तो x सेम है, a और b डिफरेंट। फॉर्मूला है x स्क्वायर + a + bx + ab। चलो जी, x की जगह तो क्या आ रहा है? 2a स्क्वायर, a की जगह क्या आ रहा है? 9, b की जगह क्या आ रहा है? 5। साइन प्लस है तो हमने साइन लिखा है। आइए, तो 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर 9 + 5, x की जगह 2a स्क्वायर और 9 × 5, तो 4a की पावर 4। 9 और 5 14, 14 + 2 जा 28a स्क्वायर और 9 5 जा 45। दिस वे वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चन। और अगर मान लो x y z है, x की जगह क्या लिखा हुआ है? x y z, तो जब हम x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x y z का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये है हमारे 7th पार्ट में, बाकी तो सेम है, आप कर लोगे। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड तो हो गए आपके, क्योंकि आप लोग सामने नहीं है, इसलिए 40 मिनट का काम 20 मिनट में ही निपट जाता है। और आई एम वेरी श्योर यू इट मस्ट बी टेकिंग क्वाइट अ लॉन्ग टाइम फॉर यू, आप लोगों को ज्यादा समय लग रहा होगा सॉल्व करने में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें हमारे कौन से फॉर्मूले हैं? या तो फर्स्ट या सेकंड, बस दो ही फॉर्मूले, फर्स्ट या सेकंड।
देखो फर्स्ट तो आप कर लोगे, सेकंड भी आप कर लोगे, मैं आपके लिए कर रहा हूं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 6x² माइनस 5y का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में इसको 2 बार लिखा हुआ था, अब सीधा सा होल स्क्वायर लिख दिया। फॉर्मूला मुझे पता चल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की जगह 6x², b की जगह 5 रख दो फॉर्मूले में। 6x² का होल स्क्वायर माइनस 2 6x², b की जगह 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर, क्या मिला? 36x टू द पावर 4। अब 2 6 जा 12, 5 जा 60, माइनस 60x² y और प्लस 25y²। समझ आई कहानी? सो दिस इज ऑल इन दिस। एक क्वेश्चन में अब इसको फोर्थ पार्ट करके दिखाता हूँ, उसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, और फिफ्थ पार्ट में आपको करके दिखाता हूँ क्योंकि उसमें डेसिमल इन्वॉल्व है। फोर्थ तो आप कर लोगे, मैं फिफ्थ करके दिखाता हूँ क्योंकि फ्रैक्शन तो मैंने आपको वर्क करके बता दिया पहले, अब मैं आपको डेसिमल वाला करके बताता हूँ। फिफ्थ 0.4p माइनस 0.5q, 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो वही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या? 0.4p और b की वैल्यू क्या? 0.5q। चलो जी रखो फॉर्मूले में। 0.4p का होल स्क्वायर टू 0.4p 0.5q प्लस 0.5q का होल स्क्वायर। सो मुझे मिला 0.16p² माइनस 2 4 जा 8, 5 जा 40, डेसिमल कितने के बाद? 2 के बाद, तो 0.4pq और 0.25q। So this way this work is to be completed. Complete your work up to exercise 9.5 question number 1, 2 and 3, and by today evening you will have to send me your notebooks, PDF of your notebooks, and please take good pictures, take straight photos. If you are taking that horizontal photos, it is creating problem to me to check. Okay, so complete your work and send me the PDF of this work. Thank you, take care.